दिल्ली है दिल वालों का शहर और दिल्ली है खाने और खिलाने का शहर। यहाँ हर गली में है एक खाने का फेवरेट स्पॉट, इसलिए दिल्ली है बिजनेस ओनर्स के लिए पसंदीदा सिटी। और दिल्ली के इसी जुनून और खाने के शौकीनों के सफर में हम फूड इंडस्ट्री के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रियलिटी शो जहां फूड तो होगा मगर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। देश भर में 8000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने सिर्फ 30 एंट्रीज ही चुनी जिनके आइडिया में था दम। क्या मिलेगी उन्हें, इन्वेस्टमेंट या मेंटरशिप? दोस्तों, यह मंच बनाया गया है उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनके पास है एक मैजिकल रेसिपी, एक स्टार्टअप आइडिया और एक सपना जो न केवल उनका बल्कि उनके परिवार का और भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उड़ान देगा। यहाँ है एक्सपर्ट्स का पैनल और मेंटोर्स जो उनका भविष्य डिसाइड करेंगे। तो कौन बनेगा इंडिया का अगला टेस्टप्रेन्योर? हेलो एंड वेलकम टू कैच प्रेजेंस टेस्टप्रेन्योर, पावर्ड बाय पंसारे ग्रुप, योनक्स, अग्रवाल नमकीन्स and Roop Mahal Rice, knowledge partner SGT University and initiated by AGSKI 360। तो अब शुरू करते हैं टेस्ट और पिचिंग्स का असली खेल। मिलते हैं आज के नए एंटरप्रेन्योर से। Good evening, experts. My name is Arjun. I represent a company called Dranks. It's Friday, let's get some drinks. That's where it's from. Dranks is a low-calorie, no added sugar beverage brand with sophisticated flavors. Our first product is we make craft mocktails with no added sugar, no preservatives, no artificial ingredients. On average, all of our drinks are less than 40 calories. We are live on Blinkit and Amazon in Delhi NCR. We are a reasonably new firm. We've been live for about 3 months only. The response has been reasonably good. We are here to raise 5 crores at a valuation of about with 15% equity, and I'm happy to sort of dive deeper into that going forward. And that's quickly about Dranks. I'm happy to sort of make you some samples really quickly for you all to try. So we've got 4 flavors while I make the bottles. That's what our packaging looks like. What you have here is Fire Starter. It's a cactus lemon chili masala, sort of like an Indian take on the picante. This one is crimson frost, watermelon, cucumber, and mint. Beautiful package. Every bottle, thank you. Every bottle comes with a garnish specific to the drink to give you a complete beverage experience. So you've got 3 dried chilies in the Fire Starter. You've got 3 dehydrated lemons in the crimson frost. Outside of that, we have cinnamon breeze, which is coconut, pineapple, cinnamon. Comes with 3 cinnamon sticks, sort of like an elevated pina colada. And we have Saffron Silk Road, which is orange, rose and saffron, comes with 3 dehydrated oranges. Outside of this, we've got 4 other flavors which have undergone their final shelf life testing and will be in the market soon. And then we've got 17 other flavors in the pipeline. A large population in India doesn't drink. And what happens is that people who drink, they've got whiskeys, vodkas, rum, gin, beers from all over the world. And people who don't, if you notice, they always end up having a Coke, an orange juice, or at best a virgin mojito. My wife being one of them. So I thought to myself, इन्होंने क्या गुनाह करा है, इनके लिए भी कुछ बनाते हैं. So which was the inception of Dranks. So that's about it. I've been working on this product for about a year now. We've been live for about 3-4 months. What you're drinking right now is Cactus Lemon Chili Masala. You should have got the spice. Of course, I'm running on limited space right now, but you should have got Guntur chilies and capsicum extract, where you would actually feel the spice at the front of your tongue and at the back of your throat. Each bottle is priced at 250 rupees. Makes 2 mocktails and 3 cocktails. All of these drinks are, can be had with or without alcohol, but we are positioning it as a craft cocktail brand. It's for someone who enjoys their whiskey and their partner who doesn't enjoy alcohol can have one of these if they'd like. So this is at 250, but like a lot of your competitors were selling online at about half the price. That's right. Yes, they have a lot more sugar, and I wanted to compliment you on the taste of this. It's really good. Thank you so much. Of late, I'm into savory cocktails. This is exactly what I would probably go for. But going back to the price point, right? Currently, most bars use a lot of syrups, sauces. You know it. What's running, and that costs nothing for them to make a cocktail or a mocktail. I can understand where a
person at home who's having a party would like to use something like this. Right. But again, it's double the price Right. from a Jimmy's or something else that out there, right? So can you elaborate a little bit on that? Is it because of your contract Thank you. manufacturing or? Yeah. So the idea is that in the larger scheme of things, this is a form factor that we've started with, and this is specifically targeted for people who want to drink at home. How much you have invested in this business? Well, close to 1 crore is what we invested, Close and to? 1 crore 1 crore. is what we invested. And as far as sales are concerned, in October we did about 20,000 rupees. In November we did about 60,000 rupees, and in December we did about 1.5 lakh. Okay, so 1 crore went where? So it's gone in product development, marketing, product development, inventory, raw materials, development, and all of that stuff. Wait, but like if you have a contract manufacturer, then why would you be so out of pocket? So the contract manufacturer only does the manufacturing. The bottles, the labels, the caps, the Your- design, all of that is me. And the production is also done by him, right? Only the production part. But he fills your bottles That's right. at his facility. Right. Raw So material. you're investing in the packaging part of it. Packaging, raw materials, so like the fruit pulps that go into this, the flavors. So how much inventory are you holding? As of now, we have got about, well, it's still under production, but we've got about 15,000 bottles in inventory. How long time you expected to come out of this business? Pardon me? How long time? So our projections say that we will be break-even by year 5. In fact, we'll be profitable in year 5. We expect, we project a revenue about 25 crores, in which we'll be, our net margins will be at 6 crores. How much will you require in the next 5 years? In the next 5 years, we will require about 18 crores, and that will make us cash flow positive. It's So a long that's, journey to go. pardon me? It's a long journey to go. It's an FMCG product. It will take, in fact, 5 years. I'm talking 5 years because as you are early stage investors, there is a return on capital that you are expecting. However, a larger term, long-term vision is actually a 10-year vision. So in 10 years, that's how. I'm happy to sort of dive deeper into projections. Having said that, this is a niche that I've picked up in the market to work on. The larger vision of Dranks is to be the beverage, the go-to beverage brand in India, and eventually for the world. So what are the other funding sources? Pardon me? Like you said, you put in your 1 CR. What are the other funding sources you're looking at? Well, you, with respect. Having said that, we're also speaking to a lot of external institutional investors. We're in advanced stage discussions to actually raise our first round of institutional capital. I love the packaging. I love the story. I love you. I love everything about you as well as an entrepreneur. Thank you. Totally fired up. You're very clear on your vision. I would love to be a part of this journey with you and mentor you. मैं शहद खरीदती नहीं हूँ, मैं शहद संग्रह करती हूँ। मैं हनी वाली हूँ और ये मेरी कंपनी है ठंडा वाटी, जो 2020 में शुरू की गई थी कोरोना के टाइम पर। और ये कंपनी जो है हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे काम करती है, जिसमें हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली हमने 3 साल पहले हनी में अपना FMCG में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और ये हम अपना मैं एक मधुमक्खी पालक हूँ। आई एम अ बी कीपर, जो खुद अपने फार्म से मधुमक्खियों को पाल कर शहद निकालती हूँ। तो मेरा पर्पस इसमें यहाँ पर अभी प्योर चीज लोगों को पहुँचाना, ऑर्गेनिक चीज पहुँचाना, फार्म फ्रेश हनी लोगों तक जो बिल्कुल अनप्रोसेस्ड होता है, एकदम रॉ हनी हम लोगों तक पहुँचाते हैं। मेरे पास 200 से ज्यादा मधुमक्खी के बक्से हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ। और हमारा जो बिजनेस है वो माइग्रेटरी बिजनेस है, मतलब जहाँ जहाँ जैसा जैसा फ्लोरा एंड फौना होता है हम उसके साथ चलते हैं। अब मुझे आप लोगों से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की डिमांड इसलिए है क्योंकि मैं अभी कुछ भी सिर्फ एक रॉ प्रोडक्ट बेच रही हूँ। ये मेरे बॉक्सेस आप देख रहे हैं, मैं एक रॉ प्रोडक्ट बेच रही हूँ जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई लेबलिंग नहीं है। लोग खरीद रहे हैं, बहुत खुश होकर खरीद रहे हैं, पर क्योंकि अगर बॉटल में एक ब्रांडिंग हो जाएगी, एक लेबलिंग हो जाएगी, तो एक अलग ही उसका आपको पता है कि एक अलग आ जाएगा। साथ ही मैं अपने भी बॉक्सेस बढ़ाना चाहती हूँ। फार्म का खर्चा, लेबर का खर्चा, ये सब भी मुझे चाहिए। साथ में मेंटरशिप चाहिए, नेटवर्किंग भी चाहिए और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।
So since how long you are into this business, Praveen जी? कब से आप 5 years हो गए? 5 years तो मेरी कंपनी स्टार्ट किए हुए हैं सर, पर मैं FMCG में मधुमक्खी के बॉक्सेस में पिछले 2 साल पहले आई हूँ। तो 2 साल से मैं ये काम कर रही हूँ एंड आई एम अ रजिस्टर्ड बी कीपर फ्रॉम द नेशनल बी बोर्ड दिल्ली। And what is your sales? सेल्स मेरी मैम अभी अगर हम बात करें तो मेरी 2000 रुपए डेली की सेल हो जाती है। And how do you sell? कैसे sell करते मैं हैं? अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेल कर रही हूँ, सिर्फ एक फेसबुक प्लेटफॉर्म से और वर्ड टू माउथ में सेल करती हूँ। Without branding, without अभी any. कुछ भी नहीं, नहीं अमेजोन नहीं, मीशो नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी बॉक्सेस? इन्वेस्टमेंट मेरी अभी हाल फिलहाल आप करें तो 15 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें लगी हुई है। एक बॉक्स कितने का? एक बॉक्स 5000 रुपए का आता है सर। एक बॉक्स में कितने किलो आते हैं? एक बॉक्स में ऐसा नहीं है कि कितने किलो आता है, पूरे साल में एक बॉक्स हमें 25 या 30 किलो शहद निकाल के दे देता है And मधुमक्खियाँ। आपके पास कितने हैं ये? मेरे पास 200 से ज्यादा है, कभी 250 हो जाते हैं, कभी 220, घटते बढ़ते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक चलता है मेरा। तो ये जहाँ पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वहाँ पे फार्म्स में, हाँ जी। उनके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट आप कर पाते हैं, कैसे इजीली अप्रोच कर पाते हैं और कैसे फिर वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे लेके आते हैं आप लोग, क्या देख, प्रोसेस है? हमारा क्या होता है, हमारी ट्रक्स में जाते हैं, जैसे अब हम कश्मीर जा रहे हैं राजस्थान से, तो हमारी 1.5 लाख की 1.25 लाख की तो माइग्रेशन की कॉस्ट जाती है, जो हम ट्रकों में लेकर जाते हैं इसको। उसके बाद वहाँ हमारे पास जो लोग, जहाँ पे हम लोग उनको जिनके फार्म में रखते हैं, जिनके खेतों में, उनके साथ हमारा टाई अप होता है। कुछ लोग हमें उनको ऐसे ही रखने देते हैं क्योंकि हमारी मधुमक्खियाँ उनके खेतों में जाकर पॉलिनेशन करती हैं। अभी तो अगर देखिए बात किया जाए तो अभी तो मैं प्रॉफिट कहूंगी तो अभी तो मेरी वो जो है, आप कहते हैं ना, वो 5 साल में जो हमारी वैल्यू आ जाती है, अभी तो हम, हाँ ब्रेक इवन, अभी तो हम ब्रेक इवन पे नहीं पहुंचे क्योंकि मुझे 2 साल हुए, तो ब्रेक इवन पे तो नहीं हूँ क्योंकि मेरा फार्म का खर्चा है, प्लस में जो हमारे लॉसेस मार जाते हैं वो अब, क्योंकि अगर हम जैसे गए तो हमारे लॉसेस कैसे हैं, भालू आए वो हमारे पूरे कश्मीर में पूरे बॉक्सेस लेके चले गए, तो वो हमारा सारा छत्ते के छत्ते खराब हो गए। रास्ते में जा रहे हैं तो ट्रक्स में हमारा पूरा ट्रक्स का टायर फट गया, वो हमारे लॉसेस हैं। तो अभी तो हम उन लॉसेस से ही रिकवर कर रहे हैं, या जो हमारी बीमारियां लग जाती हैं डब्बों में, वैक्स मॉथ लग जाती है, वरोआ माइट लग जाती है, उन बीमारियों से जूझने के लिए हमें कितनी बार पूरे बॉक्सेस के फ्रेम्स को जलाना पड़ जाता है। तो अगर आप बात कीजिए कि प्रॉफिट पे, तो अभी मैं प्रॉफिट पे नहीं हूँ। आप बी कीपर हैं, तो आप बी कीपर बनने का आपने कैसे सोचा इस एज में आके कि आपको बी कीपर बनना है? क्या बैकग्राउंड है, क्या किस वजह से आप बी कीपर बने? सर बी कीपर ये है कि मैं गई थी मशरूम फार्मिंग करने की, मुझे मशरूम फार्मिंग सीखनी है। मशरूम फार्मिंग में वो एक दिन का एक एक्सपोजर विजिट देते हैं मशरूम वाले, वहाँ एक्सपोजर विजिट में गई तो एग्रीकल्चर से एक लगाव सा हो जाता है। वहाँ मैंने बी बॉक्सेस देखे थे तो मुझे लगा यार बी बॉक्सेस बहुत अच्छे हैं, देखो मधुमक्खियाँ शहद बना रही हैं। ऐसे करते करते मैंने वो कोर्स सिलेक्ट किया कि कहाँ से ये होता है, तो मैंने KVIC राजघाट से मधुमक्खी पालन का 5 डेज का कोर्स किया। वहाँ से उन्होंने मुझे 10 डेज के कोर्स के लिए सिलेक्ट किया, जो ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत आता है। उसमें गवर्नमेंट 10-10 बॉक्सेस हर बी कीपर को देती है और उस पर हमें सब्सिडी मिलती है 20%। आप ऑर्गेनिक में क्या करते हैं? जैसे आपने कहा ये आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हाँ जी, तो वो काम आप कब करते हैं? वो तो सर मेरा ऐसा है ना, वो तो मेरा ट्रेडिंग है, मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, मैं उसको ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग। टाइम तो देते हैं आप उसको, वक्त तो देते हैं, जी, आप... ऐसा होता है ना सर, अब जैसे मार्केटिंग में इसमें आई हूँ तो वो तो मेरे पास ऑर्डर्स आए होते हैं, तो उनको दिया, वो लड़कों ने उठाया और उसको पकड़ाया है, वो एक सिंपल सा प्रोसेस है। पर अब मेरा सारा इंटरेस्ट हनी वाले में ज्यादा, अब आपका इंटरेस्ट इसी में है ना, ट्रेडिंग। आपको अगर इसमें पैसा मिल जाए, इसमें आपको स्कोप मिल जाए, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिख जाए, तो आप अपने ट्रेडिंग वाले टाइम को भी इसमें लगाना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली सर, क्योंकि मेरे पास अभी ना ब्लैंक रास्ता है, वो कहते हैं ना, हमें एक रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि स्टॉक बहुत हो जाता है, उसको वहीं पे डाइवर्ट करना, डाइल्यूट करना नहीं हुआ। एक्चुअली में क्या निशान, जिनके पास भी काम कर रहे हैं, जिस भी जाके फार्मर से वो प्लेसमेंट ले रहे हैं, जगह दे रहे हैं, उसको भी तो कुछ चाहिए ना। उनको ये पैसों की जगह शायद हनी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं। 2000 रुपए टोटल आते हैं। करेक्ट। नहीं सर, वो हमसे पैसे नहीं लेते, वो हमसे अपना पॉलिनेशन कराते हैं। प्रवीण जी, हमारी जो कंपनी है वो 127 बी कीपर्स के साथ ऑलरेडी काम कर रही है। बहुत अच्छा मैम। मेरे पास NGO भी है जिससे हम बी कीपर्स को सपोर्ट भी देते हैं। थैंक यू मैम। NGO डजंट मीन कि वो इक्विटी का उसमें वो नहीं होता जी। मैं आपको एज अ मेंटर और मैं आपको ये बताऊंगा, जो ब्रांडिंग का खेल है ना जी, जो आपको इसमें लेबलिंग करनी है, कंप्लायंस है, ये सारे काम हम आपको पूरा करा के दे देंगे। थैंक यू सो मच सर। सारे काम पूरा करा के दे देंगे। आपको जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, अभी फिलहाल जितनी आपकी प्रोडक्शन है जी, और जितना प्रोसेस आपका है, उसको बेचने के लिए सेल कहाँ करना है, कैसे नेटवर्किंग आएगी,
वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे काम करा के दे देंगे। Thank you जो so कॉस्ट आएगी वो हमारी तरफ से हम उसको बेयर करेंगे। जी सर। आपकी पैकेजिंग, लेबर, डिजाइनिंग, कंप्लाइंस, ये सारे काम हम पूरे करा के दे देंगे। ठीक है सर, ठीक है आपको सर। कोई इसमें आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं। प्राइस भी फ्रेम आपकी मार्केटिंग में सब में पूरा हेल्प हो जाएगी। जी। मार्केटिंग में पूरी करवा दूंगी आपको। ठीक है मैम। बट थोड़ा सा इस पे भी आपको और वर्क करने की। Thank you for coming, Praveen. We wish you all the best. Oh, thank you ma'am. Thank you so on your much. journey, and please enjoy your time with your two mentors. Oh, Yeah. thank you so Take much. care. Nice to meet you. Nice all to of meet you too. Yeah. हाय एवरीवन, मेरा नाम राहुल शर्मा है। एक्चुअली आई एम बिलोंग टू आगरा, तो करंटली स्टेइंग इन गुड़गांव। तो माय टोटल एक्सपीरियंस है 8 ईयर प्लस इन HR बैकग्राउंड। तो मैंने बहुत सारा कुछ देखा, जो कि कंप्लायंस भी होती है, पेरोल भी होता है और RNR भी होता है। तो सबसे ज़्यादा RNR यूज होने के लिए हमारा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का यूज होता है। क्योंकि जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था HR में, तो हम RNR हर क्वार्टरली कराते थे। तो वहाँ पे हमें अलग अलग वेंडर से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता था, लाइक डेट टी-शर्ट्स के लिए अलग, कॉर्पोरेट के लिए अलग, हैम्पर के लिए अलग, और एंटायर थिंग जो भी है हमारे प्लांट्स वगैरह एवरीथिंग एल्स। क्योंकि जो हमारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हमें हर तरीके के गिफ्ट देते हैं और नेचर पर्पज और होम पे यूज। तो वहाँ में थोड़ा मेरा डाउट आया, तो कि ये क्योंकि अलग अलग वेंडर से कोऑर्डिनेट करना बहुत ही हेल्थी हो जाता है, बहुत ही लेंथी वगैरह, सो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बार बार फॉलोअप करना, सारी चीज़ें करना। बट अपार्ट फ्रॉम में, तो मैंने एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि हम सारे प्रोडक्ट को एक साथ लेके आए विद कस्टमाइज। क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो हम टी-शर्ट्स, मग, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स एंड बोटल्स, मग, सेरेमिक मग, मैन थिंग एल्स एज पर रिक्वायरमेंट क्लाइंट। तो अभी जो मैंने स्टार्ट किया है, मेरे को 6 मंथ हुए हैं अराउंड, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अभी मेरे पास 12 से 13 क्लाइंट हैं ऑलरेडी। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड HR से, तो सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट पकड़ते हैं वो HR ही पकड़ते हैं। वेंडर मैनेजमेंट हो गया या आपका गिफ्टिंग का हो गया। तो ऑलरेडी मेरे रेफरेंस से आ रहे हैं। आप इस तरीके से प्रोडक्ट्स बता रहे हो कि आपके प्रोडक्ट्स आपके आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स हैं कि these 5 प्रोडक्ट्स और 10 प्रोडक्ट्स आई एम वर्किंग आउट, या फिर कस्टमाइजेशन करते हो? कस्टमाइजेशन हम एज पर रिक्वायरमेंट। मुझे रिक्वायरमेंट है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, मेरे पास मैन पावर है वहाँ पे 35 है, मुझे 35 टी-शर्ट्स चाहिए होंगी, तो एज पर दैट यू विल कस्टमाइज। मैं एज पर क्लाइंट ऑर्डर के हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं। वो तो देते आपको ऑप्शन देते हैं, वो भी फिक्स वेंडर है आपके? यस, वो मैन्युफैक्चरर भी है हमारे पास। क्योंकि हमारी जो स्क्रीनिंग और वो तुम्हारा स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह वो हमारी इन हाउस है, और बाकी हम अभी आउटसोर्स कर रहे हैं डायरेक्टली। क्योंकि अभी इतना मेरा बैंडविड्थ नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मैं सब पर आऊँगा। तो कॉर्पोरेट में इंट्रोड्यूस कैसे करते हो आप अपने आप को, जब आपके पास कोई प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है? या तो आपके पास 10 SKUs हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट्स हैं कि मैं डायरी करता हूँ, मैं टी-शर्ट करता हूँ, मैं कार्गो करता हूँ, मैं कैप्स करता हूँ। हम तो मैंने देखिए स्टार्टिंग में बोला, ब्लाइंडली जाते हो आप कॉर्पोरेट के पास? He's a gift box. So instead कुछ of भी, anything or anything everything. that has to go into a Be- gift is done by him. एज पर That's what he रिक्वायरमेंट। said. राहुल, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आप 8 साल HR की जॉब करके आप इस बिजनेस में आए क्यों? पहले तो ये बताइए। Yeah. हाँ, मैं आपको आपने बिजनेस ये क्यों शुरू करा? वो इसलिए शुरू करा क्योंकि मेरे को खुद अपना एंटरप्रेन्योर बनना है आगे चल के। क्योंकि मुझे खुद का ही कुछ करना है। चीज में कुछ गैप तो ढूंढा होगा ना, कुछ तो गैप ढूंढा होगा, या तो अपने आप में, या फिर आप पर्टिकुलर एक फील्ड में कि आपको क्या कुछ दिख रहा है, मतलब यही इसी business चीज की में choose मुझे किया जाना है। एक्चुअली आपने HR में भी तो आप एजेंसी खोल सकते थे, आपकी एक्सपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई नो वेरी इसमें वेल, क्यों आए आप? वो इसलिए आया क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने प्रॉब्लम बहुत सारी फेस की। मैंने जो प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि अलग अलग वेंडर से कोऑर्डिनेट कर रहा है बंदा, हर बंदा। तो मैंने गिफ्टिंग का काम इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे इसमें कुछ अच्छा करना है। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी, अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं, कोई भी कॉर्पोरेट कोई भी हसल नहीं कर रहा है, कोई भी HR हसल नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है, एक ही अपने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के पास जाते हैं, उनके पास हर किसी के पास अपने। आई नो वेरी वेल, बट हो सकता है आजकल मैं मार्केट में B2B में भी बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करना चाहूँ कि मुझे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग चाहिए होगी, तो मेरे पास बहुत सारे लिस्ट आ ऐसे लिस्ट आ जाएगी। आप जो मुझे देखिए, help दिल्ली में हम बैठे ना, आप दिल्ली अपने में आप को कैसे आप identify दिल्ली के करते हैं? अंदर ही बहुत आप ज्यादा मिल जाएंगे। श्रीपुरा मार्केट जाइए, आप जाइए मेरा खुद पहाड़गंज, का फ्रेंड है उसका। पहाड़गंज जाइए, श्रीपुरा। श्रीपुरा में कम से कम नहीं तो 300 दुकानें हैं जो गिफ्टिंग मटेरियल का काम करती हैं। किसी एक दुकान में घुस जाओ, चाहे उस पर टी-शर्ट लगी हो, चाहे उस पर पेन लगाओ, एक दुकान में घुस जाओ, फिर उसके बाद उसको बताओ अपनी रिक्वायरमेंट, वो आपको सब उसी दुकान में खड़ा खड़ा पूरा कर देगा। संजीव जी, बस हाँ यही है हमारा कॉमन क्वेश्चन, एक ही है, आप अपने आप को अलग डिफाइन कैसे करते हो सब चीजों से? क्योंकि आज के टाइम पे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग या सोशल गिफ्टिंग ये बहुत ज्यादा एक ट्रेंडिंग बिजनेस है।
तो आप अपने आप को कैसे यूनिकनेस कैसे दिखाते वो हो? इसलिए आपकी क्या ऐसे दिखाते हैं क्योंकि सर जो आपने अभी एग्जांपल दिया है सिद्धपुरा का, तो वहाँ सिर्फ ड्राई फ्रूट नहीं मिलेगा, वहाँ चॉकलेट नहीं मिलेगा, बट वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो आप अच्छा चॉकलेट अच्छा ड्राई फ्रूट कैसे दे देंगे? कैसे क्योंकि करोगे आप? देखिए अगर आप कपड़ा बेच रहे हैं, कपड़ा भी अच्छा देंगे, पेन भी अच्छा देंगे, डायरी भी अच्छा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी नहीं है, आप चॉकलेट और ड्राई फ्रूट भी अच्छा देंगे, तो ये काम आप सारे कैसे करेंगे? ये तो हर किसी के अलग अलग काम है। वेंडर ही लेंगे, वेंडर से ही लेंगे ना आप खुद किसी कहीं ना कहीं आप तो खुद तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो आप भी ये सब ले रहे हैं। फ्रॉम हियर मैं आपको मेंटरशिप में हेल्प कर सकती हूँ सोर्सिंग के ऊपर, बिकॉज एक तो हम बहुत सारी नेटवर्क्स में इन्वॉल्व है और दूसरी से हमारी अपनी सोर्सिंग, जिस रेट्स पे हम सोर्सिंग करते हैं, खाली सोर्सिंग नहीं बट क्वालिटी सोर्सिंग, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। दूसरा आपने इसमें 5 लाख की आस्क दी हुई है, वो किस पर्पस के लिए, उसका कुछ ABCD। क्योंकि आपके पास तो कोई ऐसा स्टॉक भी नहीं है, आप तो कस्टमाइजेशन से करते हैं, तो आपको तो मेरे ख्याल से फंड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी सर मैं जो मशीन है जो मेरी एक तो हमारी लेजर मशीन है जो प्रिंटिंग के लिए होती है, जो मेरे पास 1-2 मशीन जो 3 से 4 तरीके की प्रिंटिंग होती है। इसमें यूवी प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, सप्लीमेशन होती है और लेजर प्रिंटिंग होती है। तो वो मशीनों के लिए, जिससे क्या है कि हमारा जो आउटसोर्सिंग प्रिंटिंग हो रही है वो अंदर करता है। 1 मिनट, नॉट अ गुड आइडिया। आई टेल यू, आप HR हो, आपके कनेक्शन HR वालों के साथ, आप प्रिंटर नहीं हो, ठीक है। मैं आपको ऐसा प्रिंटिंग का सोर्स दे सकती हूँ ना कि आपकी इकोनॉमी, मैं ना काफी एक्सप्लोर करके इस पॉइंट पे पहुंची हूँ। X अमाउंट से शुरू की प्रिंटिंग और अब मैं X/2 पे भी पहुंच गई हूँ, आधा उसका, और क्वालिटी उससे 21 नॉट 19। तो वो जो अनुभव है, एक लाइफ का एक अनुभव होता है, वो हम आपसे शेयर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। देखिए हर चीज हर कोई नहीं कर सकता, आई नो वेरी वेल, ठीक है। हर चीज कोई नहीं कर सकता। जो चीज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है ना, जिस मशीन में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है उसमें मेंटेनेंस की भी आवश्यकता है, तो वो ना एक मुश्किल पालने वाली बात है, ठीक है। मैं आपको देखो, कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे, ठीक है। मैं आपको बहुत सोर्सिंग अच्छी दे सकती हूँ, ओके, बिकॉज जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत थके हुए रेट्स मिले थे, लेकिन मुझे नहीं पता था तब। आज जिस पॉइंट पे मैं हूँ, दिन और रात का फर्क है उन रेट्स में, क्योंकि उस जर्नी में बहुत लर्निंग हुई है, एक्सपीरियंस मिला। राहुल, मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा, आप अगर फोकस्ड होके, आपका क्या विजन है, क्या आपका टारगेट है, उसके साथ साथ अगर आप अपने आप को डिफाइन करो कि आपकी ये USP है। आपकी USP प्रिंटिंग नहीं हो सकती, आपकी USP ये नहीं है कि कस्टमाइजेशन करके कुछ भी आप दे सकते हैं, क्योंकि कुछ भी करने वाली बात है, आपकी आइडेंटिफाई, आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे।